Dear students, I welcome you all to my channel. So here is a video for you on area related to circles. In continuation with the previous video, the question here is the length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by minute hand in 5 minutes. So suppose करो एक क्लॉक है, उसमें ये मिनट हैंड है जो कि 5 मिनट्स मूव करता है फ्रॉम 12 to 1। तो इसमें जो एंगल बना है यहाँ पर, ये एंगल हमें पहले पता करना है कितने डिग्री का बना है, और उसके बाद इस पोर्शन का, तो ये जो पोर्शन होगा इसका हमें एरिया निकालना। सो सिंस a minute hand describe an angle of 360 degree in 60 minutes. Therefore, the angle described by angle described in 60 minutes is equal to 360 degree. Therefore, angle described in 1 minute, that is 360 divided by 60, that is 6 minutes, now 6 degree. The angle described in 5 minutes will be 6 multiply 5, that is 30 degree. So this angle is 30 degree. Now we have to find the area of this sector of 30 degree. The length of minute hand is equal to 14 centimeter. Therefore, R is 14 centimeter and the theta is 30 degree. So we have to find the area of the sector swept by the minute hand in 5 minutes. Therefore, area of sector swept by minute hand in 5 minutes, that will be given by formula pi r square theta upon 360 degree. So value of pi is 22 upon 7, r is 14 centimeter and theta is 30 degree upon 360, 1 upon 12. So 22 upon 7, 14 centimeter and 1 upon 12. 2 से काटा 6, 2 से काटा या 3, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 154 upon 3 centimeter squares. The area of the sector, area of this sector is 154 upon 3 centimeter squares. So this is the answer for the questions, 154 upon 3 centimeter squares. So next question, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding number 1 minus segment
and number 2 is major sector. So this is a circle of radius 10 centimeter, and this arc, this is a chord AB chord subtend a right angle at the center of the circle. We have to find the area of the minor segment as well as the area of the major sector. Radius of the circle (10 centimeters). Angle subtended by a chord at the center is equal to 90 degree. Therefore, theta is 90 degree for the minor sector. माइनर सेक्टर के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री का है और मेजर सेक्टर के लिए एंगल होगा 360 माइनस 90, दैट विल बी 270 डिग्री. सो एरिया ऑफ द सर्कल is equal to pi r square. So we have to use pi 3.14. So 3.14 r is 10 centimeters square. So 314 upon 100 multiply 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गए, तो एरिया आया सर्कल का 314 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया अगर नीचे वाले सेक्टर के एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से सर्कल में से माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर will be equal to pi r square theta upon 360 degree. So pi is 3.14, r is 10 centimeter square and theta is 90 degree for the minor sector upon 360. तो इस तरह से ये आया 314 अपॉन 100, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 90 अपॉन 360, 314 अपॉन 4, 157 upon 2, so 78.5 centimeter square. This is the area of the minor sector. अब हमें निकालना एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में सेकंड पार्ट, पहले आंसर निकालो सेकंड पार्ट का फर्स्ट. तो सेकंड पार्ट हमें पूछा था एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. That will be equal to area of the circle minus area of minor sector. सर्कल का एरिया था 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इनको
सब्ट्रैक्ट किया 314.0, 78.5, 13 minus 8, 5, 3 and 2। तो ये आया एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज 235.50 centimeter square। So this is the second part। So area of the major sector is 235.50 centimeter square। So area of the minor segment now। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे हमने निकाला था एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, अगर उसमें से हम इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB that will be equal to 1/2 r square sin theta। So r is 10 centimeters, r square 1/2 sin theta, 10 centimeters square 1/2 and sin 90, theta is 90, sin 90 degree। तो आ गया 10 multiply 10, 1/2 sin 90 is 1, तो आ गया 50 centimeter square। So area of the triangle is 50 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, मैं जहाँ पर ये ब्लैक शो कर रहा हूँ, ये ब्लैक डॉट किया मैंने। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल राइट एंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो इसका एरिया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो जो पहला पार्ट था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, तो वो आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर वो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, इससे पहले। तो अगर उसमें से हम उसका सेक्टर का माइनस कर देते हैं, माइनर सेक्टर का उसके सर्कल में से, तो वो आता है एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन, इसके दो पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find number 1 length of the arc, number 2 area of the sector formed by the arc, number 3 area of the segment formed by the corresponding chord। अब ये देखिए, ये एक सर्कल है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, और ये आर्क है। इस आर्क के द्वारा सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाया गया। अब इसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, यानी इस आर्क की लंबाई। नंबर 2 एरिया ऑफ द सेक्टर, ये जो पूरा ये जो सेक्टर बना है ऑफ 60 डिग्री, इसका हमें निकालना है एरिया, और साथ में निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट बना है,
इस सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। अब रेडियस है इसमें, रेडियस ऑफ द सर्कल circle R is that is equal to 21 centimeter. Theta, the angle subtended by the chord, that is equal to 60 degree. Now length of the arc, first is length of arc, उसका फार्मूला होता है 2 pi r theta 2 pi r मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। एक तो ये होता है, या फिर होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। और जैसे इसको अगर हम इसको ऐसे कटिंग कर देते हैं तो 180 डिग्री आ जाता है। तो दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 या पाई आर थीटा अपॉन 180। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर है, कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, तो हम यूज़ करेंगे 22/7। सो आर इज 21, थीटा इज 60 डिग्री, 1/180। तो कैंसिल हो गया 3। अब इसको कटिंग करें 3 से 21 को 7 कटा, तो ये आ गया 22 centimeters. The length of the arc is 22 centimeters. The first answer is the length of the arc. Length of the arc AB is equal to 22 centimeters. अब हमें निकालना एरिया ऑफ द सेक्टर। सेकंड पार्ट, area of the sector, pi r square theta upon 360 degree. (22/7). R is 21 centimeters and theta is 60 degree अपॉन 360। इसको कटिंग की आ गया 1 और 6, 22/7, 21 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 3 66। उससे मल्टीप्लाई किया 21 से, so 126 plus 12 138। तो ये आया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अभी इसको डिवाइड करना था, नीचे अभी है 6 भी है, तो 6 से कटिंग करें, ये जाएगा 6 और 8 14, 14 4 18, ये पूरी कटिंग हो जाएगी। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 1, तो यह है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया जो है, तो ये जो निकालना था सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट के लिए आसान तरीका ये है कि इस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर सेगमेंट। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट will be equal to
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने लिखा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी निकाला है। सो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आएगा R स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन 2। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर R square is 221 centimeter square and sine is 60 degree, sine 60 divided by 2। हमें ये पोर्शन इसमें से माइनस करना है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 21 सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 21 सेंटीमीटर का जब स्क्वायर करेंगे वो आएगा 441 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 होता है √3/2 साइन 60 √3/2 और साथ में है एक 2 और, तो ये आगे इस तरह से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 centimeter square। So that is the area of the this segment। तो इसको क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर है तो इस दोनों माइनस नहीं हो सकते। इसको अब हम इसी तरह से ऐसे ही लिखेंगे दोनों को इसके नीचे, क्योंकि अंडर करेंगे तो इसका अगर हम एलसीएम भी करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये इसमें से माइनस नहीं होगा। तो इन दोनों को हम सेपरेटली लिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ द सेक्टर वाज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए बन गया एरिया ऑफ दिस माइनर सेगमेंट। और यही हमारा थर्ड आंसर था। तो इसमें 3 आंसर निकाले हैं। पहला था लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क तो वो आया था 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अभी जो निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट तो वो आया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding number 1 minor and number 2 major segment of the circle। अब ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 15 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड के द्वारा इस पर जो एंगल है सेंटर पे वो है 60 डिग्री। अब हमें निकालना है 2 आंसर्स, एक एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट और दूसरा निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब ये जो रेड कलर से शेड किया हुआ है पूरा मेजर सेगमेंट है और जो ब्लू कलर से शेड किया ये माइनर सेगमेंट। So let the radius of circle 15 centimeter. Therefore, area of circle pi r square। पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। मल्टीप्लाई बाई 15 सेंटीमीटर तो 314/100 और ये इसको मल्टीप्लाई अगर हम बारी बारी से या अगर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको
25 से अगर काटें तो आ गया 9, ये आया 4, और इसको कटिंग करें 2 और ये हो गया 157। तो 157 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 7 63, 45 6 51, 14, तो मल्टीप्लिकेशन से आया 1 4 1 3/2। इसे अब फ्रैक्शन में लिखें, पॉइंट में 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। So this is the area of the circle. The area of circle is 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके लिए अब हम पहले निकालें एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट का फार्मूला होगा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। मैं यहाँ लिख रहा हूँ A, ये हो गया O और ये हुआ B। सो एरिया ऑफ सर्कल मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। So area of sector, area of sector of theta 60 degree. So R is 15 centimeter, theta is 60 degree. So area of sector will be pi R square theta upon 360 degree. Pi is 3.14, R is 15 centimeter square and 60/360। अब इनको मल्टीप्लाई करके 3.14 मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा 706.5, और इसकी कटिंग करके आएगा 1/6। यानी इसको अगर हम 1/6 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 706.5 को 6 से डिवाइड करें 1 0 6 4 तो यह है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये था एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सेक्टर है 117.75। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बाद में फिर ये ढूंढना न पड़े। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB बराबर R स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर साइन 60/2। 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 सेंटीमीटर और साइन यह आ गया √3/2, और उसको 2 से और मल्टीप्लाई करें तो 225 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू लेनी है 1.73/4। तो 225 मल्टीप्लाई 173, 7 5 35,
7, 15, 5, 2, 2, 5, 2, 14 plus 5, 9, 19, 8, 3. तो यह 3, 8, 9, 2, 5 डिवाइड बाई 4 और डेसिमल लगेगा यहाँ पर 2 के बाद। फोर से डिवाइड किया, 4 9 36, 2 28, 4 9 36, 2 4 7 28, 1 4 3 12, 4 1 4, yeah, 97.3125 centimeter square, यह एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। नाइन्टी 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB। अब एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर 97.3125। So area of minor segment बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी जो माइनर सेक्टर था ये जो 60 डिग्री एंगल से बना हुआ, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर था 117.750 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और ये 97.3125। अब इसे माइनस करें, 117.750 माइनस 97.3125, 5734002। तो ये आ गया एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा पहला आंसर। सो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब निकालना है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, सेकंड आंसर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल है 706.5000 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, और ये है 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे माइनस करें, 706.5000 उसमें से माइनस 20.4375 52, और यहाँ माइनस होकर आया 60686। तो ये आ गया 686.0625 centimeter square. So area of the major segment is 686.0625 centimeter square.
तो हमें इसमें दो आंसर निकालने थे। एक निकालना था एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, वो था 20.4375, और दूसरा निकालना था एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, तो वो है 686.0625 centimeter square. So dear students, I have given solution for some of the question here. So I request you to like and share the videos and subscribe the channels. Thank you. Have a nice day.